Sonu Pathan is an ordinary 21-year-old. Like other young men in the western UP Doab, he aims to join the Indian Army. नाम मेरा सोनू पठान है। बीए मैंने आपके की है। गांव बिलोचपुरा का मैं रहने वाला हूं जी। इसमें नौकरी चक्कर में लगे रहते हैं। आर्मी के फॉर्म आए थे, अब लिख लेते हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं। आर्मी का फॉर्म अप्लाई किया है जी। But as he waits for the recruitment to start, Pathan is scouring the classified sections of the newspaper for odd jobs. There is more to this army aspirant than meets the eye. Pathan is an ethnic Baloch, one of 8,000, who live in the hamlet of Bilochpura. The seemingly nondescript village has recently played host to the who's who of the Baloch freedom movement. The history of Bilochpura dates back to the times of the first Mughal emperor, Babur, when Baloch artillerymen were part of his army that marched into India. Some of them chose to settle in the Ganga-Yamuna Doab and have since called India home, even fighting for the Mughal crown against the British in India's first war of independence in 1857. Fast forward to September 2016, residents of Bilochpura, led by Mazdak Baloch, stage a vigorous protest outside the Pakistan embassy in New Delhi. यहाँ से लोगों को लेके गए, पाकिस्तान एम्बेसी पे हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया और एम्बेसी पे हम ज्ञापन दे आए थे। Irfan knows his ancestors came from Balochistan, but says they have no cultural remnants from the tumultuous land. लेकिन बलोचिस्तान से आए इतना पता है। ये मैं नहीं कह सकता कौन से जिले से आए, किस साइड से आए, कहाँ से आए, क्या हुआ, वो मुझे जानकारी। But when it comes to present-day Balochistan, he parrots the view of the Modi government. पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का बलोचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में बिलोचपुरा पे तो जितना भी सहयोग हो सकेगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या जो लोग आ रहे हैं, जो लोग इस यूनिट से जुड़े हैं, उनका जो भी आदेश होगा बिलोचपुरा तो उस पर काम करने के लिए तैयार है। A new Baloch village had cropped up on the map after the Prime Minister's speech from the ramparts of the Red Fort. A placid, lush green village that has little in common with the topography and lived reality of Balochistan. The people of Bilochpura are more UPites than Balochis, and that is something that they will stress upon once you speak to them. They are not unlike hundreds of other communities that may have come from somewhere else but now call this country their home. Their Baloch identity was dormant for all these years but was reawakened by an organization called the Hind Baloch Forum, an affiliate of the Rashtriya Swayamsevak Sangh or the RSS. हिंद बलोच फोरम की भूमिका रही है और वो लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि बलोचिस्तान आज़ाद हो और हमारा जो है उनके साथ पूरा सहयोग। The Hind Baloch Forum linked Bilochpura to the land, people and problems of Balochistan, which is 1,000 kilometers away. मेरा नाम संदीप झा है। मैं हिंद बलोच फोरम कोर कमेटी का सदस्य हूँ। हिंद बलोच फोरम माननीय इंद्रेश जी के संरक्षण में और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में काम करने वाला एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, जो बलूचिस्तान के मुद्दे पर सहानुभूति रखता है और बलूचिस्तान के लोगों को अपना नैतिक समर्थन देता है। When I asked Jha if the involvement of a top Sangh leader meant the politicization of the Baloch cause in India, he insisted that it was just a civil society movement. इंद्रेश जी भले आरएसएस के पदाधिकारी हैं, लेकिन इंद्रेश जी एक आम नागरिक होने के नाते, एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, उनका कल्चरल एफिलिएशन क्या है, ये हिंद बलोच फोरम के लिए ही मटेरियल है। ये एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है जो वहाँ के लोगों की चिंताओं से, वहाँ के लोगों के मानवाधिकार हनन से व्यथित है और चाहता है कि उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिलाए। इसका कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। But the indelible footprint of the RSS is unmistakable over Bilochpura. When Prime Minister Narendra Modi mentioned the Baloch cause in his Independence Day speech, the lives of the people of Bilochpura were changed forever. Abdul Qadir Baloch
known to his followers as Mama Qadir, is the founder of the Quetta-based International Voice for Baloch Missing Persons. Mama Qadir sees India favorably, but is not happy with mere lip service being paid to the Baloch cause by the Indian establishment. मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मारें। लड़ने के लिए हम खुद लड़ते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और चर्चा की, उसको मैं हिंद बलोच फोरम के बनने और चलने की दिशा में इसलिए ऐतिहासिक मानता हूँ क्योंकि इससे पहले भी बलोच के मुद्दे पर या विभिन्न अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर विषय को जानने वाले, समझने वाले व्यक्तिगत लोग तो थे, लेकिन वो एक मंच पर नहीं थे। आपने अगर करना है बलूचों की मदद तो ज़बानी न करें, उनको अमली करें, कुछ करके दें, हमें कुछ दिखाएं कि मैं इस तरह आपका सपोर्ट करता हूं। अब ज़बानी जो आप कहेंगे, 2 साल आपने पहले कहा, आज तक आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया सवाए ज़बान से। For Mama Qadir, the fight for Balochistan is a personal one. जब मुझे इत्तला मिली कि आपका लड़का शहीद कर दिया गया है तो मैं बहुत खुश हुआ, बजाय रंजीदा होने के कि खुश हुआ। चलो एक अच्छे काम के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए अगर कोई कुर्बानी दे तो इससे ज़्यादा एक बाप को क्या फ़ख्र हो सकता है। मुझे इत्तला कर दिया गया कि हम आपके बेटे की लाश को ले आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अभी आप लोग इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं। आप लोगों ने जो करना था, हुकूमत ने या गवर्नमेंट ने या फ़ौज ने, वो कर लिया। अब मैं जानूँ, मेरा डेड बॉडी जाने, मैं खुद ही ले आऊँगा उसको। Qadir speaks of Pakistan as a colonial power, depriving the Baloch of their resources. 70 साल में उसने हमें कुछ नहीं दिया, न सेहत दी, न तालीम दी, न रोड बनाया, न गैस दिया, न बिजली दी, कुछ भी नहीं दिया हमें। जहाँ से गैस निकलता है वहाँ हमने देखा नहीं है कि गैस किस तरह का होता है। जहाँ से संगमरमर निकलता है वहाँ हमारे मकानात कच्चे और उनके बिल्डिंग संगमरमर के बने हुए हैं। I met Qadir in India in March 2018. He was here to seek medical help for his 10-year-old grandson who suffers from a heart ailment. डॉक्टरों के कहने के मुताबिक कि इसको वालिद का नहीं बताना, बच्चा शॉक न लगे, इसको दिल का मरीज़ है। तो हम इसको कभी कहते थे कि सर्विस के लिए गया है या पढ़ाई के लिए गया है या कहीं दूर गया है, आ जाएगा।